हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आई थिंक एक चैप्टर नंबर 3 होना चाहिए एनसीईआरटी क्लास 8 का। सो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन एंड देन एक्सरसाइज। ओके, सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? उसके पहले हम कुछ बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे, क्या है वो देखते हैं। लेट्स सी। पेपर इज अ मॉडल for a plane surface. What do you mean by plane surface? First point is we have to understand what do you mean by plane surface. Plane surface किसको बोलते हैं? पेपर, ये जो अपना एक पेपर हम देखते हैं अपने नोटबुक एंड ऑल वगैरह में या कोई भी अदर पेपर, वो एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस किसे बोलते हैं? when you join a number of points without lifting a pencil from the paper, you get a plane surface. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper, then you get a plane surface. जैसे कि if I draw this, then without lifting the pen I can draw this, right? I'll start from here and I can draw in without lifting the pen, then it's called a plane surface. Similarly here, without lifting the pen I can draw this. This is also without lifting I can draw. If I start this from here like this, right? Without lifting the paper I can draw this, but while drawing this I have to lift paper. कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा मैं ड्रॉ क्या कर सकती हूँ, ये इतना पोर्शन कर सकती हूँ, बट दिस आई कांट ड्रॉ. फॉर ड्रॉ दिस आई हैव टू लिफ्ट माई पेंसिल और पेन, वट एवर मे बी. सो without lifting the pencil, if I draw a surface, then it's called a plane surface. Example is this and this, but this is not a plane surface. ड्रॉ करके देख लेना, अगर without lifting a pencil अगर ड्रॉ हो जाता है तो it's a plane surface, or else it's not. Got it? Move on to next point, that is open curve. What do you mean by open curve and what do you mean by closed curve? Open curve, closed curve किसे कहते हैं? When I draw like this, this is open curve. Why? I can enter in this curve. इसके अंदर ऐसे कुछ किया जा सकता है, मतलब एंटर किया जा सकता है, एरो किया जा सकता है. इट्स लुक लाइक दैट, इट्स ओपन. सो दिस टाइप ऑफ कर्व्स आर कॉल्ड ओपन कर्व. व्हाट डू यू मीन क्लोज्ड कर्व? दिस टाइप ऑफ कर्व आर क्लोज्ड. When I start to draw from a point and again meet the same point, or I can closed, for example this I start from here and like this I can close. So this is closed, this is not open. This area comes under closed curve, so this is called closed curve. Okay, next point is polygons. Chapter starts from this point only, polygons, but for our understanding purpose we have to know the plane surface, open curve and closed curve, right? So this is the polygon. Polygons, what do you mean by polygons? Curves which are closed and made by a line segment. क्लोज भी होना चाहिए और मेड बाय लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए. अ कर्व विच इज क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट, देन वी कैन कॉल्ड इट एज पॉलीगन्स. ओके, कई डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन साइड्स. तो नेक्स्ट वो देखते हैं नेम्स ऑफ द पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स. साइड के हिसाब से पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं. पहले हैं जैसे कि अगर हम पॉलीगन्स के बारे में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो this is a closed, right? I start from here and I draw a closed curve. This is called a closed curve and also made by line segment. Curve segment से नहीं है, line segment से है, इसीलिए हम इसे closed curve. जैसे कि अगर हम ये ड्रॉ करें और else हम ये इस तरह से, this is called a polygon which is closed also and made by line segment also. Okay, next move on to with names of polygons according to their sides. फर्स्ट 3 साइड्स. अगर 3 साइड होते हैं, जैसे कि ये 3 साइड है, 1 2 3 साइड, देन इट्स कॉल्ड अ ट्राइंगल. 4 साइड है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ 4 साइड, 1 2 3 4, दीज आर 4 साइड, देन इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. सिमिलरली अगर 5 साइड होगा तो पेंटागन, 6 साइड होगा तो, जैसे अगर मैं 6 साइड ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्सागन. सिमिलरली नंबर के हिसाब से ये हेप्टा मीन्स 7, सो 7 साइड का जो होगा हेप्टागन. 8 साइड, 8 को हम क्या कहते हैं? ऑक्टागन. तो ये हो जाएगा 8 साइड का ऑक्टागन. 9 साइड को क्या बोलते हैं? 9 को क्या बोलते हैं? नैनो, तो नैनागन. और 10 साइड को क्या बोलते हैं? डेका, तो दैट इज डेकागन. होप यू अंडरस्टैंड. 3 साइड ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नैनागन एंड 10 डेकागन. दिस इज कॉल्ड द polygons, names of polygons according to their number of side. Right, now on to next point, that is diagonal. Diagonal हम किसको बोलते हैं? If I draw a polygon like this, right?
अगर मैं एक पॉलीगन इस तरह से ड्रॉ करती हूँ एंड आई गिव इट नेम ABCD, राइट। अब इसके डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, इसको डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे A से D, दिस इज नॉट अ डायगोनल, दीज आर कॉल्ड साइड्स, AB, BC, CD, AD, दीज आर कॉल्ड साइड्स, लाइक, एंड A to C when I draw, this is called a diagonal. A to C से अगर ड्रॉ करेंगे तो इसे भी डायगोनल कहेंगे, B से D ड्रॉ करेंगे तो इसको भी डायगोनल कहेंगे. Line joining up in opposite points, then it's called a diagonal. Side to side we can't draw, that is called side, not diagonal. Okay, next is interior or exterior point of a curve. Interior point or exterior point of a curve, वो कैसे होगा, interior point, exterior point. Suppose if I draw a polygon like this, right, sorry, this is straight line, okay. So if I draw a polygon like this, then this is a closed and made by line segment, right. So this is called interior part, and this is called exterior part. If any point is present in this, then it is called interior point. And if any point present outside this closed surface or closed polygon, then it's called an exterior point. Okay, that is called exterior point. Next point is convex and concave. What do you mean by convex and concave? If I draw a line, और एक अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, तो ये जो इनसाइड जो होते हैं पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर, एंड जो आउटसाइड पॉइंट होंगे वो कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट. सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अ कॉन्वेक्स, अगर मैं इसको एक पॉलीगॉन ड्रॉ करती हूँ, राइट. कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव में डिफरेंट क्या होता है, इफ आई ड्रॉ अ पॉलीगॉन लाइक दिस, देन एंड हियर इट इज concave in this I draw a polygon like this, right. तो convex में क्या होगा कि all the diagonals should present in that closed curve, that closed surface. यहाँ से diagonal होगा तो ये diagonals के जो है वो diagonals inside belong करेंगे, जो अभी polygon होगा उसमें inside belong करेंगे, तो हम उसको convex बोल सकते हैं. और concave में क्या होता है, एक ऐसे curve अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ भाग मिलेगा. ओके, कॉनकेव, केव से याद रख सकते हैं, एक गुफा की तरह अंदर की तरफ ऐसे मिलेगा. जैसे कि अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, देन दिस नेम एज ABC, ओके, ABCD. अगर मैं एक B से D डायगोनल जो ड्रॉ करती हूँ तो ये तो इस कर्व्ड क्लोज्ड सरफेस में आएगा. बट इफ आई ड्रॉ अ डायगोनल फ्रॉम A to C, देन इट्स नॉट बिलोंग्स टू दिस closed path, right. So this is not belongs to this closed part, then we can call it as concave. आउटसाइड, जो भी डायग्राम दिया है उसके आउटसाइड मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ कॉनकेव, नॉट कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में जो भी डायगोनल होते हैं वो इनसाइड, जो भी क्लोज सरफेस होता है उसके अंदर ही आते हैं, आउटसाइड नहीं आते. तो ये डिफरेंस हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, राइट. नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन्स में क्या है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम. जिसके ऑल साइड एंड एंगल्स आर सेम है उसको कहते हैं रेगुलर. नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर पॉलीगन. जैसे स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. सिमिलरली इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हैं तो इसके 3 साइड्स भी इक्वल होते हैं और जो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं. देन वी कैन कॉल इट एज इक्विलैटरल ट्राइंगल एज अ रेगुलर पॉलीगन, राइट. सिमिलरली इर्रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल नहीं होंगे. तो इस तरह से उनमें डिफरेंस होगा. तो नाम से ही पता चलता है रेगुलर है तो इर्रेगुलर, रेगुलर में सेम, इर्रेगुलर में डिफरेंट. साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो एंगल नहीं होंगे, एंगल होंगे तो साइड नहीं होंगे. ओके, लाइक दैट. नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स. यही बेसिक प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, जितने भी हमारे पॉलीगन डायग्राम जो भी होगा इन फ्यूचर, जो भी डायग्राम्स हम फाइंड करेंगे उनके लिए यह बेसिक फॉर्मूला है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स गिवन -2 into 180. Number of sides given -2 into 80. This is the basic formula of angle. Have to find angle. For example, if I draw a triangle, okay, ट्राइंगल है तो इसमें साइड्स कितने हैं इसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं. तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3 -2 into 180, राइट. तो ये कितना होगा, 1 into 180, तो ये हो जाएगा 180, राइट. तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स के एडिशन क्या होता है, 180. ओके, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है 130, 180, तो ये हो जाएगा 180 अकॉर्डिंग टू दिस. इस फॉर्मूला के बेसिस पर ये आएगा तो ये हो जाएगा ये. अगर हम एक और फाइंड करते हैं, अगर सपोज वी आर फाइंड दिस क्वाड्रिलेटरल, तो इसके अंदर हमारे क्या आएगा, कितने हैं भुजाएं, 1 2 3 4, कितने साइड से 4.
minus 2 according to formula into 180, right? तो 4 minus 2 2 into 180, तो ये कितना होगा 360. ओके 360 हो जाएगा. अगर हमको कोई पेंटागन का दे दे, सपोज पेंटागन दे दे 1 2 3 4 5, सपोज पेंटागन दे दिया और हमको कह दिया कि इसका एंगल फाइंड करो, सम ऑफ द एंगल, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी भुजाएं कितनी है, साइड्स कितने हैं 5 और माइनस 2 इंटू 180, राइट? तो 5 minus 2 इज 3 इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा 540, राइट? अंडरस्टैंड? अगर हेक्सागन का पूछ लेता तो 6, यहाँ पे 5 की जगह 6 आता. ऑक्टागन लिखते तो 8 आता है. नैनोगन, डेकागन 9 10 अकॉर्डिंग टू गिवन साइड्स वी हैव टू राइट हियर. ओके, like this we have to do. Next class we start with exercise. Okay, this is our introduction. Thank you so much. Like, share and subscribe.